Hello students, we are reading chapter 4 Agriculture. This is your geography book. तो चिल्ड्रन हमने ज्योग्राफी के चैप्टर 4 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने अब तक की डिफरेंट क्रॉप्स देखी और क्रॉपिंग पैटर्न देखा. अब टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखते हैं. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible institutional changes have hindered the pace of agricultural development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depends upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperations, and abolition of jamidari, etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reforms was the main focus of our first 5 years plans. Children, जैसे कि आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे भारत में हज़ारों वर्षों से होता आ रहा है. हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो लोग करते चले जा रहे हैं और मेन ऑक्यूपेशन है. अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़रूरी होते हैं, चेंजेस होते हैं जो कि क्रॉप्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है. और अब जो हमारी एग्रीकल्चर है उसे अब टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम किए. पहले तो कोऑपरेशन और जमींदारी जो थी उसको उन्होंने समाप्त किया, कलेक्टिवाइजेशन को उन्होंने समाप्त किया. और जो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले उसमें यही रखा गया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें हम किस तरह से इंडिपेंडेंट बने और किस तरह से उसे इंक्रीज़ किया जाए और डेवलप किया जाए. चलिए हम नोट्स के थ्रू इस टॉपिक को और ज़्यादा देख लेते हैं अच्छे से. So let's start writing from here. Technological and institutional reforms. Consolidation of holdings, cooperations, abolition of jamidari, etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of our first 5-year plan. The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. Development in few selected areas in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which includes both institutional and technological reforms. Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and diseases. Establishment of Grameen Bank, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest. Kisan credit cards and personal accident insurance scheme introduced. Special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on radio and TV. The government also announces minimum support price. तो अब एग्रीकल्चर जैसे कि बहुत ही हमारे यहाँ का बहुत पुराना और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. तो उसको देखते हुए इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारे उसके डेवलपमेंट में काम किए गए. जैसे कि जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स था, कोऑपरेशन और जमींदारी थी, उसका एबोलिशन किया गया. और उसके साथ साथ जो लैंड की फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेन फोकस लैंड पर ही रखा गया, एग्रीकल्चर पर ही रखा गया. ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई और साथ ही साथ वाइट रेवोल्यूशन भी लाने की कोशिश की गई और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की गई. बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में 1980s से 1990s में.
बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए गए, क्रॉप इंश्योरेंस की व्यवस्था बनाई गई गवर्नमेंट की साइड से। दैट मीन्स कि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिसीज़, इन सब की यदि किसी प्रकार से मार पड़ जाती है एग्रीकल्चर पर, तो क्रॉप इंश्योरेंस होने से उसकी भरपाई उसकी जो नुकसान है वो किसानों को कॉम्पनसेशन में मिलेगा। इसके साथ साथ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और दूसरे बैंक भी इस्टेब्लिश किए गए, ताकि जो लोग किसान हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर उनको लोन मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की व्यवस्था भी बनाई गई। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी शुरू किए गए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किए किसानों के लिए रेडियो, टेलीविज़न पर, और गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी अनाउंस किया। तो इस तरह से बहुत सारे सुधार गवर्नमेंट ने करने के प्रयास किए, ताकि जो एग्रीकल्चर है वह बेहतर हो सके हमारे देश में। Now, contribution of agriculturers to the national economy, employment and output. Agriculture, backbone of Indian economy, share in the progress gross domestic product, providing employment, livelihood to the population. The government of India made concerted efforts to modernize agriculture. Establishment of India Council of Agricultural Research, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast. एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल एग्रीकल्चर का, और क्या आउटपुट इससे मिलता है। तो जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहलाती है एग्रीकल्चर, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका बहुत बड़ा शेयर होता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, और पॉपुलेशन को जीने के लिए जो चीज़ें हैं, फूड है, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, वो सारा प्रोवाइड करवाती है। हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है उसने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारे प्रयास किए हैं। एग्रीकल्चरल रिसर्च और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ वेटनरी सर्विस और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी स्थापित किए गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट भी किया गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लान्स जो हैं वो बनाए गए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। चिल्ड्रन, मैं यहाँ एक्सरसाइज लगा दे रही हूँ इसी वीडियो के साथ, तो आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। और चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली. Children, here is your answers of the exercise, so you can write in your fair copy these answers.